So that I am going to start. So let us start our topic. The topic is enthalpy of neutralization, enthalpy of phase transition and enthalpy of atomization. तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. दिस इज थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 11. लेट अस स्टार्ट ओवर हियर. तो डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को, दैट्स enthalpy of. डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे enthalpy of neutralization. The topic over here is enthalpy of neutralization. डिस्कस करते हैं यहाँ पे enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization. इसी को कहते हैं heat of neutralization. This is also known as heat of neutralization. Now, what is heat of neutralization or enthalpy of neutralization? तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? अगर हमारे पास एसिड होगा, it reacts with base. Now, when acid and base react, they form salt. Plus, they release water molecule. Now, when we have 1 mole of an acid, if it is neutralized by 1 mole of an base, when 1 mole of acid is neutralized by 1 mole of base, so जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, that is known as enthalpy of neutralization. So हम यहाँ पे लिखेंगे the amount of energy released. We'll write over here the amount of energy released. बहुत ही important concept है ये. The amount of energy released when 1 mole of acid is completely neutralized by 1 mole of base. 1 mole of base, then the amount of heat released, that's called enthalpy of neutralization. The amount of heat released when 1 mole of acid is completely neutralized by 1 mole of base is called the heat of neutralization. Is called the heat of neutralization. इसी को हम कहते हैं enthalpy of neutralization. So this is called heat of neutralization. For example, मैं यहाँ पे कोई एसिड लूंगा, HCl मेरे पास एसिड है. I'll react with the base. Base मेरे पास NaOH है. The acid and base will react. What they will form? They will form salt, NaCl. Plus we will get over here water molecule. तो अगर इसका 1 मोल में लूंगा, अगर इसका 1 मोल लूंगा, 1 मोल ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस, तो यहाँ पे जो Q अमाउंट ऑफ हीट निकल के आएगी, दैट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो Q अमाउंट ऑफ हीट दैट्स प्लस, इसी को हम डेल्टा में माइनस लिखते हैं. डेल्टा ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी नेगेटिव because neutralization is exothermic process. The amount of heat released delta H of neutralization that's negative. तो ये बात आपको याद रखना है. कहीं पे अगर एनर्जी ऐसे लिखी होगी पॉजिटिव, उसका मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव होता है. उसका मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव होता है. इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है. So the amount of energy released when 1 mole of acid is completely neutralized by 1 mole of base, that's called enthalpy of neutralization. तो यहाँ पे HCl मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. I'll write over here HCl is strong acid and NaOH is strong base. Strong base. This is strong acid, this is strong base. When strong acid and strong base combine, when 1 mole of strong acid combines with 1 mole of is neutralized by 1 mole of strong base, then the amount of heat released, it's always a constant value. In this case, delta H of neutralization is always equal to minus 13.7 kilocalories per mole. ये बात आपको याद रखनी है. अगर हमारे पास strong acid और strong base होगा, then the amount of heat released has a constant value.
That's minus 13.7 kilocalories per mole. अगर हमारे पास strong acid और strong base होगा, then the amount of heat released has always constant value, that is delta H of neutralization is equal to minus 13.7 kilocalories per mole. ये बात हो रही है सिर्फ strong acid और strong base की, तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली strong bases कौन से हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस तो आप याद रखो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप सेकंड ग्रुप फर्स्ट, अरे ये ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड। Similarly, we have sodium hydroxide. Similarly, we have potassium hydroxide. Similarly, we have rubidium hydroxide. We have cesium hydroxide. Group second hydroxide is beryllium hydroxide, BeOH whole twice. Magnesium hydroxide, MgOH whole twice. Calcium hydroxide, CaOH whole twice. Beryllium, magnesium, calcium, strontium hydroxide. These are strong bases. अगर इनमें से कोई बेस होगा, that is a strong base. तो हमें कुछ एसिड्स का भी याद रखना है। एसिड्स का याद रखना है, these are weak acids. HCN is a weak acid. HCOOH is a weak acid. H2S is a weak acid. These are certain weak acids. CH3COH organic acids, they are weak acids. So H2CO3, this is a weak acid. These are certain weak acids, इनको हमें याद रखना है। HF is a weak acid. इसके बगैर जो भी हमारे पास यूजुअली एसिड्स आएंगे, they will be strong acid. एक्चुअली एसिड बेस केमिस्ट्री का हमें अलग से डिस्कस करना है, ये बात आपको यहाँ पे जरूरत लगेगी, इतनी बात काफी है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक बात आप यहाँ पे नोट करो, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ for the neutralization of 1 mole of strong acid में ऐसे लिखूंगा, strong acid with 1 mole of strong base में SB लिखूंगा। for the neutralization of 1 mole of strong acid and strong base, heat released has constant value. Heat released has constant value. It has constant value. Heat released has constant value. That value is equal to Q is equal to plus 13.7 kilocalories per mole. इसी को हम अगर डेल्टा एच में लिखेंगे, अगर Q प्लस है डेल्टा एच माइनस है, minus 13.7 kilocalories per mole. Now this thing is very important. ये चीज बहुत ही important है, very very important. This thing is very very important. और ज्यादा डिस्कस करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। बेसिकली हमने यहाँ पे रिएक्शन की NaOH की विद दैट ऑफ HCl। इसका हमने एक मोल लिया, इसका हमने एक मोल लिया, दे रिएक्ट टुगेदर, दे फॉर्म सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है, इफ यू हैव टू डिटरमाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और क्या, अगर आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच एन निकालना है, दिस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ H plus and OH minus. Delta H of ionization of acid and base. Ionization means, for example, आपके पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में आपके पास पानी है। Now water is a solvent. इस वाटर में आप HCl को डुबो देते हो। You fill this with HCl. HCl डाला इसमें आपने, तो HCl को बेसिकली क्या होगा वाटर में डाल के, it will get ionized. It will give H plus ions and Cl minus ions. This is called ionization. Similarly, अगर आपने इसमें NaOH डाला, this will get ionized. You will get Na plus and OH minus ions. The amount of heat required to dissociate this electrolyte, it's called electrolyte.
to dissociate this compound into ions, it is called the heat of ionization. It's called heat of ionization. So in case of strong acids and strong bases, in case of strong acids and strong bases, this heat of ionization is equal to 0. तो ऑटोमेटिकली ये डेसोसेट होते हैं. You need not to apply heat. आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंसेप्ट में आपको हीट अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. जो ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डालोगे, इट डेसोसेट्स. जो ही आप वीक स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में डालोगे, इट डेसोसेट्स ऑन इट्स ओन. यू हैव नॉट टू सप्लाई हीट ओवर हियर. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा delta H of ionization in case of strong acids and strong bases, it's equal to 0. तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा delta H of neutralization of strong acid and strong base is equal to 0 plus delta H of H plus ions plus OH minus ions. एक्चुअली वाटर भी यहाँ पे ब्रेक होता है. वाटर भी ब्रेक होता है into H plus and OH minus ions. वाटर आयनाइज होता है. So if this is equal to 0, then we can write delta H of neutralization is equal to delta H of ionization of water, that's minus 13.7 kilojoules per mole. तो हमारे पास delta H of neutralization है, जो है that is basically delta H of ionization of this. So ये बात हमने प्रूव की. delta H of neutralization of strong acid and strong base is actually delta H of ionization of H plus and OH minus. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्म करो. यहाँ तक कंफर्म करो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट. क्या ये बात आपको कंफर्म हुआ? Have it got confirmed? In case of strong acid and strong base हम लिखेंगे delta H. Very good, very good, very good, very nice. तो हम लिखेंगे delta H of neutralization is equal to delta H of ionization plus delta H of H plus and OH minus. Ionization of strong acid and strong bases, it does not require energy. In this case, it will be 0 because they are 100% ionized. Strong acid 100% ionized है. Strong base 100% ionized है. This will also be 100% ionized. This will also be 100% ionized. अगर ये 100% आयनाइज्ड है, इट विल आयनाइज ऑन इट्स ओन. यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मींस दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0. सो आपका जो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, उसका वैल्यू 13.7 है. दैट्स इक्वल टू देन डेल्टा एच ऑफ H plus and OH minus. तो हम कहेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. This is very, very, very important point. Now secondly हम discuss करेंगे in case of weak acid. अगर हमारे पास weak acid या weak base होगा, in case of weak acid or base. For example मेरे पास यहाँ पे weak acid है HCl, this is a weak acid. मैं इसको treat करूँगा with NaOH strong base के साथ. तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? Salt मिलेगा, NaCl. तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? वाटर. यहाँ पे वाटर मिलेगा. नाउ सी, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा एसिड है, हमने एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर में हमने NaCl को डाला, बट इस कंटेनर में हमने HCl को डाला. HCl क्या है? वीक, डेसोसेट नहीं होगा. देयरफॉर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. सो वी कैन राइट delta H of ionization is not equal to 0 in case our acid or base is weak. So delta H of ionization is not equal to 0 because 100% डेसोसेशन नहीं होता है. हमें इसको डेसोसेट कराना पड़ेगा. अगर इसको वाटर में डेसोसेट करना है तो इसको हीट देनी पड़ेगी. वीक एसिड या वीक बेस को हीट देनी पड़ेगी. दैट हीट इज नोन एज डेल्टा H of ionization. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, we will write over here delta H of neutralization is equal to delta H of ionization plus delta H of H plus and OH minus. Now what is delta H of H plus and OH minus? We will write delta H of neutralization is equal to delta H of ionization. इसका वैल्यू हमने निकाला. इसका वैल्यू comes out to be minus 13.7 kilocalories per mole.
आपके पास इतनी एनर्जी निकल के आती है और आपको यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है. नाउ दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, लेट इट इज प्लस x बाय दिस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? द कंक्लूजन इज दैट अगर आपके पास वीक एसिड होगा या आपके पास वीक बेस होगी या आपके पास दोनों वीक होंगे, दोनों वीक, मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों वीक, मतलब एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो जो आपका डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो इस वैल्यू से कम होगा. डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो इस वैल्यू से कम होगा. नो सर, बट नो सर. लेट आया आप तनवीर, क्या बोलते हो? नो सर. तो आपका डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो एक तो होगा आपका -13.7, -13.7 और उसमें प्लस एक्स करना है. सो इसका वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड में, दैट विल बी लेस देन -13.7, that will be less than -13.7. मीन्स उसका वैल्यू आपको 13.7 से कम मिलेगा, -12.7, -11.5 लाइक दैट. क्या आपको ये बात क्लियर होगी? Have you got this? In case of weak acid and weak base, constant value नहीं होता है. In case of weak acid and weak base, constant value नहीं होता है. But in strong acid, since they are 100% neutralized, the value is constant over there. Have you got this point? Have you got this point? Yes, sir. Nahida, very good. Faisal, very nice. Khalda, very good. Kanita, very nice. Very nice. So you have got this point. तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा. I'll see ये क्वेश्चन कौन करेगा. अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, I'll see ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा आप में से. Who will do this question? Who will do this question? तो क्वेश्चन मेरे पास है. मेरे पास यहाँ पे कॉलम ए है, यहाँ पे मेरे पास कॉलम बी. आपको मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी. यहाँ पे मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड है. दिस इज एसिड. यहाँ पे मैं एसिड लिखूंगा और यहाँ पे मैं इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखूंगा, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो मैं यहाँ पे एसिड लिखूंगा कोई एसिड, फॉर एग्जांपल HCl. मैं एक और एसिड लिखूंगा HCl. मैं ये दो एसिड लिखूंगा. तो यहाँ पे मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखूंगा -13.7. तो यहाँ पे मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखूंगा. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -11.2. तो HCl किसके साथ मैच होगा? HCl इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये होगी. HCl इज अ वीक एसिड, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगी. तो हम यहाँ से कहेंगे जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स दिस वैल्यू, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. तो वो ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं. वी हैव एसिड्स A, B, C एंड D. इनकी डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है. इट इज -11.2, इट इज -12.3, दिस इज -13.7 एंड दिस इज -10.4. तो आपको बताना है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है. नाउ टेल मी फास्ट. क्या एसिडिक ऑर्डर बता ABCD में? सर HCl, वेरी गुड वेरी गुड. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ. -13.7 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक. उसके बाद कौन सा एसिडिक सबसे ज्यादा? 12.3 वाला. उसके बाद 11.2 वाला. उसके बाद 10.4 वाला. वेरी गुड. तो हमारे पास आंसर जो आएगा 13.7 इज C. देन वी हैव द आंसर C. तो उसके बाद हमारे पास B आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद D आएगा. दिस इज द राइट आंसर. वेरी नाइस गाइस. तो हमने यहाँ पे कहा इन केस ऑफ, वी हैव मेंशन्ड आवर पॉइंट, इन केस ऑफ weak acids and weak bases, weak acids or weak bases, heat of neutralization, delta H of neutralization is less than -13.7 kilocalories per mole. Minus indicates that heat is released over here, but there is one exception. So इस exception को याद रखना.
There is one exception, that is the exception of HF. HF is a weak acid. HF is a weak acid. अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगा विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, then what type of compound is formed? Salt will be formed NaF plus water. तो यहाँ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है क्यू यहाँ पे जो है इट इज 18.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18.6. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -18.6 होता है. वेरी लार्ज, लार्ज नहीं होना चाहिए, वेरी लार्ज. तो यहाँ पे एक्चुअली कौन सा मैकेनिज्म होता है, क्या होता है ना. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था याद रखना H4. अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद वाटर मॉलिक्यूल. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो जो आपका डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन है उसका वैल्यू बहुत बड़ा बन जाता है कंपेयर टू दिस वैल्यू -13.7. तो दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू. यहाँ पे वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है. HF में इतना होता है, HF में एक्सेप्शन है, ये वाला फिनोमेनन होता है. इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे खत्म किया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हैव यू गॉट इट? क्या आपको समझ आया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा. क्या आपको समझ आ गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? यस सर, वेरी गुड. आदिल, फैसल, वेरी गुड. Kanita, very good, very nice. तो अस्मा आज, yes sir, very good, very nice, very nice. तो next हम discuss करते हैं enthalpy of phase transition. इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे that is important, that's enthalpy of phase transition. Enthalpy of phase transition. Now what is phase transition? Change from one state to other state, that's called a phase transition. For example, हमारे पास वाटर है, it's in liquid state. मैं इस वाटर को कन्वर्ट करता हूँ into water gas. Now what is this process called? Water liquid into water gas. Tell me what is this process called? Water liquid into water gas. Now अगर मैं वाटर लिक्विड को वाटर सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? अगर मैं वाटर सॉलिड को डायरेक्टली वाटर गैस में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? नाउ लिक्विड इनटू गैस और वेपर, इट्स कॉल्ड वेपराइजेशन. दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. वाटर लिक्विड इनटू वाटर सॉलिड, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और मैं लिखूंगा सॉलिड से हम लिक्विड जाएंगे, सॉलिड से हम लिक्विड जाएंगे, देन दिस इज कॉल्ड सॉलिड टू लिक्विड. This is called from solid to liquid. This is called fusion or melting. और इसी को हम फ्यूजन भी कहते हैं. और दिस प्रोसेस सॉलिड टू गैस, इसको क्या कहते हैं मुझे बताओ? सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में जाओगे, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में जाओगे, ऑपरेशन फ्रीजिंग, वेरी गुड. अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाओगे उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. देन दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर होगी टू चेंज वन फेज इनटू अनदर फेज, टू चेंज लिक्विड इनटू गैस फेज, टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड फेज, or to change liquid into solid phase, or to change solid into gas phase, then that is called enthalpy of phase transition. तो हम यहाँ पे लिखेंगे the amount of, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे the amount of energy released or absorbed, energy released और absorbed. यहाँ पे absorb भी होगी, कहीं कहीं पे absorb भी होगी. Amount of released or absorbed when 1 mole of substance, 1 mole of substance changes its phase, changes its phase, changes its phase. तो क्या हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन? क्या हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन? क्या हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन?
डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो दिस इज, मैंने इनको मैंने एक ही जगह लिखा, अलग अलग डिफाइन करने से बेटर है एक ही जगह इनका कंसेप्ट क्लियर करें। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, दिस विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, दिस विल बी एंडोथर्मिक। नाउ सी, अगर हमें वाटर होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा ले लो वाटर, वाटर होगा, इट्स इन लिक्विड फेज, इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर सॉलिड में, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी दैट्स कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या कहीं अब्सॉर्ब होगी, दैट्स कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। क्या आपको फेज ट्रांजिशन कंसेप्ट हो गया क्लियर? फेज ट्रांजिशन कंसेप्ट क्लियर हो गया? फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन में हम कैसे निकालेंगे फिर एंथैल्पी? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली एंथैल्पी है, मैं मानूंगा इसकी एंथैल्पी फॉर एग्जांपल -15 किलो कैलोरी 15 किलो जूल्स है, और इसकी एनर्जी 10 किलो जूल्स है। तो आपको डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग यहाँ पे निकालना है। इट विल बी डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स -15 माइनस इंटू +10, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, so -15 -10, that's -25 kilojoules per mole. This is how we have to change it. तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में बेसिकली ये लगता है कार्बन ग्रेफाइट। अगर कन्वर्ट करना होता है कार्बन डायमंड में, फॉर एग्जांपल वी कन्वर्ट कार्बन डायमंड इनटू कार्बन ग्रेफाइट और ग्रेफाइट इनटू डायमंड, कार्बन डायमंड इनटू कार्बन ग्रेफाइट। Now this is called a change of allotropic form. This is called a change of allotropic form. This is also phase transition. This is phase transition, allotropic phase transition. Similarly, हमारे पास सल्फर है, सल्फर ऑर्थोरोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, फेज ट्रांजिशन, यहाँ भी फेज ट्रांजिशन होगा, यहाँ भी एलोट्रोपिक ट्रांजिशन होगा। हैव यू गॉट इट? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मुझे क्लियर करो बात, क्या आपको समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड आदिल, वेरी गुड सीम, वेरी गुड अवैस, वेरी नाइस नाहिदा, कनीता, अमीना, खुशबू, दानिश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दानिश raised his hand, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक करो साथ साथ, वरना पाप लगेगा आप लोगों को। लाइक करो साथ साथ, अगर आपको समझ आता है तो लाइक करो। enthalpy of atomization. Now what is enthalpy of atomization? Basically आपको किसी भी मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल H2, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन एटम्स में, we convert it into atoms. How much amount of energy is required to break this bond, to break the molecule into its atoms? That will be called enthalpy of atomization. So this will be called enthalpy of atomization. So this will be called enthalpy of atomization. We write over here like this, delta H of atomization. तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बात करेंगे, this will be delta H of atomization not, that means under standard condition. Standard condition means 25 degree centigrade and 1 atm, that is 298 Kelvin. अगर 298 Kelvin पे बात करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे? It is the amount of heat required. तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? बॉन्ड को ब्रेक करना है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, देयरफॉर हम लिखेंगे इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन one molecule, it is the amount of heat absorbed when one molecule एक molecule की बात कर रहे हैं, is dissociated, is converted into atoms, into its atoms, when one molecule is converted into its gaseous atoms. मैं यहाँ पे लिखूंगा into its gaseous atom. When one molecule और atom भी यहाँ पे लिखो,
when one molecule or atom in solid state is converted into gas atom. For example, मेरे पास सोडियम है in solid state, इसको मैं एनर्जी दूंगा, आई विल कन्वर्ट इट इनटू सोडियम गैस. वन एटम को मैंने कन्वर्ट किया इनटू गैसियस फॉर्म, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन. So this is delta H of atomization. Basically आपको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाके गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एटम, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे मैं लिखूंगा R2 ऑक्सीजन एटम. तो बेसिकली कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होगी, वन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है इनटू इट्स गैसियस एटम. So that will be called a delta H of atomization. This will be called a delta H of atomization. तो जो हमारा next topic इसमें होगा, that will be Hess law. Hess law is the most important topic.